Hello and good evening, everyone. First of all, I would like to say sorry for the delay that we have started late today. There was some technical glitch, so we were resolving that particular issue, and now we are live, interacting with you, live, discussing with you the important current affairs related to Indian polity and constitution. Okay, so today we will be majorly dealing with two very important topics. We will be majorly dealing with two very important topics. The first one being the essentials and the non-essentials of a religion. The essentials and the non-essentials of a religion, wherein this topic, this news was recently, this current affair issue was recently in news when this hijab row that we have already seen, or that you must have read in the previous current affairs magazines and whatever sources that you refer to for the current affairs, जहाँ कर्नाटका में हिजाब को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, और उस केस में हाई कोर्ट ने ये मेंशन किया था, कर्नाटका के हाई कोर्ट ने, दैट wearing hijab is not a essential practice in Islam. This is what the High Court of Karnataka mentioned in the when this case went to the High Court of Karnataka. तो recently फिर क्या हुआ, ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में भी आ गया था. तो जब ये सुप्रीम कोर्ट में आया तो जिन लोगों ने, जो अपीलेंट्स थे, द पीपल हु वर अपीलिंग अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, they said this in the Supreme Court, that this is not for the High Court to decide whether the particular practice is essential to the religion or not. उन्होंने बोला कि हाई कोर्ट को ऐसे अथॉरिटी नहीं है कि वो डिसाइड कर सके कि किसी भी रिलीजन का कोई जो प्रैक्टिस जो है वो एसेंशियल है या नहीं है. देन द सुप्रीम कोर्ट सेड कि आप ही वो लोग थे जिन्होंने हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में सबसे पहले ये एडमिट किया था दैट हिजाब इज एसेंशियल टू इस्लाम. तो जब ये एडमिट किया, देन ओनली हाई कोर्ट सेड दैट नो, इट इज नॉट एसेंशियल टू द इस्लाम. So that is the context why this has been in news, wherein Supreme Court replied to the appellant that it was you who raised essential practice. High Court had to take it up. This Supreme Court said to the appellant. That is why this whole topic is in news. और Supreme Court में इस पे अब regular hearing भी चल रही है. When this topic of essential and non-essential comes up, there are many factors which makes it important for the examination. सबसे पहली बात होती है कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होते हैं एक रिलीजन में. राइट टू फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू रिलीजन कौन से आर्टिकल्स में आता है. फिर जब यहां पे आता है आपका हिजाब वाला, तो आर्टिकल 19(1) इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी आपके इस कॉन्टेक्स्ट में हाईलाइट होता है, एंड देन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी हाईलाइट होता है. दैट्स व्हाई दिस टॉपिक becomes very important for the examination. Simultaneously, जब essentials और non-essentials की बात आती है, then the Uniform Civil Code also comes into the play. And when the Uniform Civil Code comes into the play, it is directly linked with the directive principles of state policy, again, which is very interesting and important topic as far as the civil services examination is concerned. Right? Let me look into some of your questions which are coming up. Just give me a second. Yeah, Shivani Rajput, I believe these current affairs classes are very important for the examination. Of course, you should be attending them, because the topic that every expert teacher is picking up is based upon their experience of this examination and their experience of teaching the aspirants. And that is why every topic that we discuss in this program, daily current affairs classes, held by Change IAS, becomes very important for the civil services. You should not be missing any one of them. Right? So इस particular issue को हमने कुछ सब parts में divide किया है. पहला हम देखेंगे context या relevance क्या है. Context या relevance we have already seen. Context या relevance जो है
वो हमने ऑलरेडी देख लिया कि क्यों ये न्यूज में है आज की डेट में, राइट। नेक्स्ट हमको देखना है व्हाट आर द एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल्स ऑफ ए रिलीजन। व्हाट प्रैक्टिस of a religion can be called as the essential practice? What practice of religion can be called as a non-essential practice? That also we have to see. Then we will be seeing who decides on essentials of a religion. कौन डिसाइड करेगा, किसको अथॉरिटी मिली है कि वो किस रिलीजन में कौन सी एक्टिविटी जो है, कौन सी प्रैक्टिस जो है वो एसेंशियल है और या नॉन एसेंशियल है? Who has the power to decide that thing? That also we will be discussing. Then very important, the difference between religious and secular activities. When we say religious versus secular activities, we mean to say what are the activities in a particular religion which can be termed as a religious activity or which can be termed as a secular activity. Secular activities वो activities हुई जो आपके religion से directly नहीं जुड़ी हुई हैं, but you follow it as a custom, you follow it as a tradition, not because of religion. Gradually, with due course of time, it has coincided with the religion, but even if you don't follow that, it will be counted as a secular activity, not a religious activity. Next, we will be seeing uniform civil code and essential activities. यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड एसेंशियल एक्टिविटीज, बेसिकली हम इसमें देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात जब भी आती है, देयर इज अ ह्यूज कंट्रोवर्सी, देयर इज अ ह्यूज वेरी बिग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स एंड द हेड्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स. तो बेसिकली ये मुद्दा इतना बहस करने लायक है भी या नहीं, और यूनिफॉर्म सिविल कोड में बेसिकली कौन कौन सी चीजें कवर होंगी, अगर लॉज बनेंगे सबके लिए बराबर लॉज, सिविल लॉज होंगे, तो वो कौन कौन से एस्पेक्ट इंडिविजुअल के लाइफ के, रिलीजन से रिलेटेड कौन कौन सी चीजों को कवर करेंगे और कितना उनसे आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो कितनी हर्ट होने वाली है, दैट वी विल बी सीइंग अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड एसेंशियल एक्टिविटीज. देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, उनमें कौन कौन सी चीजें हैं और उनमें कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल, राइट टू कंसाइंस का मतलब क्या है, प्रोफेस का मतलब क्या है, प्रैक्टिस का मतलब क्या है, प्रोपगेट का मतलब क्या है, राइट टू कन्वर्जन वो कहां पे आता है, राइट. कई बार डिबेट आती है कि भाई आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, बट राइट टू प्रोपगेट आपको राइट देता है कि अपने रिलीजन के बारे में आप किसी लोगों को बताएं, बट दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू राइट टू कन्वर्जन. तो कन्वर्जन अलाउड है कि नहीं है, वो भी चीजें देखेंगे. काफी डिबेट चल रही है, एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की बात भी गवर्नमेंट कर रही है. मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स हैव स्टार्टेड दिस, डूइंग दिस. उत्तराखंड जब इलेक्शन हो रहा था तो वहां के जो इनकम्बेंट सीएम थे, ही ऑल्सो अनाउंस्ड विद दैट व्हेन वी कम टू द पावर अगेन वी विल बी ड्राफ्टिंग अप अ एंटी कन्वर्जन लॉ, राइट. सो व्हाट इज दैट, और आपके आर्टिकल 25 और 28 के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी हैं, आपकी जो फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है उस पर रेस्ट्रिक्शंस कैसी कैसे लगी हुई हैं, दैट ऑल्सो वी विल हैव टू सी. फाइन. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. अब हुई क्या थी कहानी कि कुछ महीने पहले कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपनी एक जजमेंट दी थी, वेयर इन कर्नाटका हाईकोर्ट हाईलाइटेड समथिंग. ठीक है, कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट क्या थी पहले वो देखते हैं. कर्नाटका गवर्नमेंट, सॉरी नॉट कर्नाटका गवर्नमेंट, इट इज द कर्नाटका हाईकोर्ट, इट इज द कर्नाटका हाईकोर्ट, राइट. तो कर्नाटका हाईकोर्ट के जजमेंट में बेसिकली 3 चीज जो हैं वो हाईलाइट हुई थी. पहली चीज जो हाईलाइट हुई थी दैट वाज essential practice से related, wherein Karnataka High Court said that wearing hijab by girls or women in Islam is not a essential practice of Islam, is not a essential practice of Islamic faith. तो ये कर्नाटका हाई कोर्ट का पहला जो चीज उन्होंने टच की थी वो ये थी. दूसरी चीज उन्होंने बोला, एक तो ये एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, दूसरा जो भी रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगा रही है दैट फॉल्स अंडर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस विच इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड. दूसरी चीज उन्होंने बोली कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर फॉल करता है.
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अंदर फॉल करता है, एंड दीज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल. फाइन. तीसरी चीज जो उन्होंने बोला, that talked about the executive authority of the government. It talked about the executive powers of the government, and the High Court said that it falls under the executive power of the government, the executive authority of the government, to restrict wearing hijabs in the colleges where uniforms are already prescribed. Had there been no uniform prescribed, अगर colleges ने, schools ने uniform prescribed नहीं की होती, then that could have chosen to wear or not to wear hijab. But when it is being prescribed by the executive, it is prescribed by the government rules, then it falls under the executive authority to restrict students from wearing hijab. Right? So ये तीन चीज जो है कर्नाटका हाई कोर्ट ने कही थी. फाइन. कर्नाटका हाई कोर्ट ने और एक जजमेंट दिया था यहां पे कि द रेस्ट्रिक्शंस ऑन वियरिंग हिजाब ऑफ द कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स, दस ये तीनों चीजें जो हैं लागू हो रही हैं. दैट इज व्हाई द रेस्ट्रिक्शंस व्हिच हैव बीन पुट बाय द स्टेट गवर्नमेंट on wearing hijab by the students and the colleges where the uniform is already prescribed does not amount to violation of their fundamental right under Article 19 Clause 1 Subclause A and Article 21. तो एक और चीज कही थी हाई कोर्ट ने कि क्योंकि ये तीनों चीजें जो ऊपर मेंशन्ड हैं, इन तीनों की वजह से अगर कोई भी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन इंपोज करती है उन स्कूल्स, उन कॉलेजेस की लड़कियों पे जहां पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड है, देन सच एक्शन बाय द एग्जीक्यूटिव विल नॉट अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये क्लियर है सबको कि कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट क्या थी. फाइन. नाउ another important topic that we have to see here is what constitutes essentials and non-essentials of a religion. What constitutes essentials and non-essentials of a religion? Okay, so when we study essentials and non-essentials of the religion, the most important case is the Shirur Math case. The Shirur Math case. And it is the case wherein the Supreme Court propounded the doctrine of essentiality. The Supreme Court propounded the doctrine of डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी. सो ये वो केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी को propound किया. और while propounding this doctrine of essentiality, Supreme Court highlighted what constitutes or what are the important practices in a religion. और किसी भी रिलीजन में क्या क्या चीजें कवर होंगी वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया. राइट. So in Shirur Math case, Supreme Court highlighted or propounded this doctrine of essentiality and highlighted what will a religious activity cover.
what all activities will be covered under the tag of, under the heading of religious activity. ये रिलीजन या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें जो हैं वो कवर होंगी. And it said that all the rituals and the practices which are integral to a religion will be counted as religious practice, essential to a religion. हर वो religious practice या activity जो कि उस religion को follow करने के लिए essential है, जरूरी है, उसको religious activity बोला जाएगा. उसको बोला जाएगा कि इस religion में वो सारी चीजें cover होती हैं. And to decide कि कौन सी एक्टिविटी किस चीज रिलीजन के लिए एसेंशियल है, उस चीज को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा while going through the basic doctrines of that religion. तो उस पर्टिकुलर रिलीजन के से रिलेटेड या फिर रिलीजियस सेक्ट से रिलेटेड जो डॉक्ट्रिन्स होंगी, द सुप्रीम कोर्ट विल गो थ्रू इट एंड देन डिसाइड वेदर द पर्टिकुलर प्रैक्टिस और एक्टिविटी इज एसेंशियल टू दैट पर्टिकुलर रिलीजन और नॉट. सो एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था जब हम ये देख रहे थे कि who decides on essentials of a religion. The answer is it is the Supreme Court, and the Supreme Court has given itself the power to decide the essentials and the non-essentials of a religion. So Supreme Court has given itself the power to decide between the essentials and non-essentials of a religion. Fine. Essentials क्या है, non-essentials क्या है, we are going through that. Let us go back to the slide. Okay. Now, अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सी जजमेंट अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं और कौन कौन से एक्टिविटीज को, कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स की तरह डिफाइन किया है. पहला केस, एक सेक्ट है हिंदुज्म में, आनंद मार्गी सेक्ट. आनंद मार्गी सेक्ट. तो इस सेक्ट में जो फॉलोअर्स होते हैं, दीज पीपल यूज टू परफॉर्म तांडव नृत्य इन पब्लिक प्लेसेस. राइट. तांडव नृत्य इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू हिंदुज्म, बट इट इज अ वायलेंट फॉर्म ऑफ violent dance form, not violent but it is a very aggressive dance form. ठीक है, शिव जी से रिलेटेड है, एग्रेसिव डांस फॉर्म है. तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट यस, आनंद मार्गी जो सेक्ट के लोग हैं उनसे तांडव नृत्य जो है काफी जुड़ा हुआ है, बट परफॉर्मिंग दैट एक्ट इन पब्लिक डज नॉट अमाउंट टू being the essential practices of आनंद मार्गी. आप आनंद मार्गी रिलीजन सेक्ट से बिलोंग करेंगे तो आपको हर जगह और हर इंडिविजुअल को पब्लिक में जाके तांडव नृत्य करना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है अगर आप आनंद मार्गी के हो तो. राइट. तो बोला गया कि आप करें पब्लिकली या ना करें, that will not decide whether you belong to that particular sect or not. And that is why this Tandav by Anand Margi followers in the public places was banned by the Supreme Court. ठीक है. ऐसा ही एक केस हुआ था, एक मुस्लिम इंडिविजुअल थे. चलिए इस केस में थोड़ा देर बाद जाएंगे हम. We'll go to this case after some time. I'll take a different example wherein एक गांव था, I guess this village was in Tamil Nadu, और वहां के लोगों की प्रैक्टिस थी कि जब नाग पंचमी जिस दिन होती है उस दिन द विलेजर्स हैव टू कैच दिस कोबरा एंड फोर्सफुली फीड इट एंड फोर्सफुली फीड मिल्क टू इट. राइट. तो इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट नाग पंचमी में आपको जबरदस्ती कोबरा पकड़ना है और उसको फीड करना है, दैट इज नॉट नेसेसरी, दैट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन. So Supreme Court banned that practice. Fine. Similarly, there was another case wherein a Muslim police officer he went to the court and filed a petition that my fundamental right to religion is being violated by the government order. उसमें यह था कि that individual should not have the beard.
पुलिस ऑफिसर्स का ये एक वो है, रूल्स है कि द इंडिविजुअल शुड नॉट हैव बियर्ड. दैट इंडिविजुअल वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सेड कि द गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग मी टू फॉलो माई रिलीजन, so that is why my fundamental right to religion is being violated. Supreme Court in that case said, आपके जो शुरुआती साल सर्विस के साल थे, जब आपने ज्वाइन की थी पुलिस सर्विसेज, इन दैट पीरियड ऑल्सो यू वर नॉट वेयरिंग दैट बियर्ड, यू वर नॉट कैरिंग दैट बियर्ड. फाइन. सो एट दैट टाइम इट वॉज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर रिलीजन, बट नाउ इट हैज बिकम एसेंशियल. पहली पॉइंट ये. दूसरा पॉइंट, इट हैज, सुप्रीम कोर्ट cited different prophecies by different heads of Islamic religion, wherein they said donning a beard is not essential part of Islam. कई जो रिलीजियस हेड थे इस्लाम के, उनके जो आर्गुमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया, उन्होंने बोला कि कई जो रिलीजियस हेड हैं, दे हैव मेनी टाइम्स सेड दैट डॉनिंग अ बियर्ड इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम. सो you cannot say that the government order has violated your fundamental right, and उनका जो suspension था उसको उन्होंने upheld किया, and he was not reinstated into the services because that was made mandatory by the government, and that was before he joined the services. He knew that these are rules. ठीक है, यहां पे ये चीज हुआ. तीसरी, अब कहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल माना है, कहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल माना है? आप सिख में देखेंगे 5 केज ऑफ सिख होते हैं. कृपाण, कृपाण उनमें से एक के का है, राइट. तो कृपाण सिख लेके चल सकते हैं इवन दो इट इज अ आर्म, बिकॉज इट इज कंसीडर्ड एज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द रिलीजन. सिमिलरली अगर आप देखेंगे, आई शो यू अनदर एग्जांपल. This hook hanging practice in some sect of Hinduism. This is a hook hanging practice. There is a hook hanging practice in some sect of Hinduism. देख रहे हैं आप यहाँ पे, हुक को चमड़े में घुसाया हुआ है, हुक्स को चमड़ों में घुसाया हुआ है. तो वायलेंट फॉर्म तो है ही, नो डाउट. दिस प्रैक्टिस इज ऑफ कोर्स वायलेंट. गुड इवनिंग दुर्गेश. मैं कौन से स्टेट से हूं? नाइस क्वेश्चन. अच्छा, अब मैं वैसे तो हूँ हरियाणा से, बट घूमता फिरता रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पे रहा हूँ, और अभी फिलहाल तो मैं यूपी में हूँ. तो यू कैन कॉल मी एज अ कंप्लीट इंडियन. पैदा कहीं पे हुआ, एजुकेशन मेरी कहीं पे, स्कूलिंग मेरी कहीं और हुई, ग्रेजुएशन मेरा कहीं और हुआ, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन मैंने कहीं और की, और आज मैं जो हूँ और जहाँ पे हूँ वो कहीं और पे हूँ. तो बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे रीजन्स घुमा हुआ हूँ, और घुमा हुआ मतलब ऐसे एज ए टूरिस्ट नहीं, एज ए रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस. तो बहुत सारा टाइम मैंने डिफरेंट स्टेट्स में स्पेंड किया है. तो यू कैन कॉल मी एज ट्रूली, मतलब कौन से स्टेट से हूँ मैं बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आई रिलेट माई सेल्फ विद डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री. तो आप मुझे इंडियन बोल लें तो काफ़ी रहेगा. हाँ, प्लेस ऑफ बर्थ बोलेंगे हरियाणा, प्लेस ऑफ स्कूलिंग अरुणाचल प्रदेश, प्लेस ऑफ ग्रेजुएशन महाराष्ट्र, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन दिल्ली. ठीक है, फाइन, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. तो ये जो प्रैक्टिस है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, ऑफ कोर्स दिस इज अ वायलेंट प्रैक्टिस, बट दिस इज नॉट अमाउंटिंग टू टेकिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल हियर. इससे किसी की जान नहीं जा रही है, इससे कोई बंदा सुसाइड नहीं कर रहा है, राइट. और ये जो लोग कर रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर सेक्ट के हैं. ओवरऑल हिंदू, हर हिंदू ये फॉलो नहीं करता है, बट देयर इज अ सेक्ट अमंग हिंदूज हु फॉलो दिस ट्रेडिशन, एंड दिस इज कंसीडर्ड एसेंशियल इन देयर रिलीजन. अगर ये एसेंशियल प्रैक्टिस भी अगर किसी इंडिविजुअल की लाइफ लेने के लिए होती, तो शायद उस पर सोचा जाता वेदर इट शुड बी बैंड और नॉट, right. So this was not banned by Supreme Court. This hook hanging practice among a certain sect of Hinduism was not banned by Supreme Court. Similarly, there is a practice among Jains of the country. Jains के बीच में एक practice है, this is known as Santhara. This practice is known as Santhara, wherein after a certain point of life, when the individual has attained or lived a life
and the person now realizes that it's time to nirvana, then the person quits eating food, drinking water. At that time the person gradually वो आदमी जो है वो अपनी लाइफ को जान उनकी चली जाती है. तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में केस था. ये पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला था कि इस प्रैक्टिस को आप बंद करिए बिकॉज दिस इज टेंटामाउंट टू सुसाइड. बट सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जजमेंट पर रोक लगा दी. तो वो हम डिटेल में उस चीज को देखेंगे अभी. देन ये एक मुहर्रम की आपने फोटो देखी होगी, वेयर द पीपल आर कटिंग देमसेल्फ थ्रू ब्लेड, थ्रू तलवार. इसको भी बोला गया था कि वायलेंट एक्टिविटी है, इट शुड बी बैंड. बट दिस इज नॉट अमाउंटिंग टू suicide of an individual. This is not amounting to death of an individual. This was not banned by the Supreme Court. तो यहां पे और बोला कि मुहर्रम is essential practice, is an essential part of Islam. That is why it was not banned. ट्रिपल तलाक, बहुत ही recent example आप देखिए, it was banned. ट्रिपल तलाक was banned और उसकी लॉ भी आया. अगेन एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल्स ऑफ ए रिलीजन. राइट टू इक्वालिटी भी वहां लगाई गई थी. वहां पे जब ट्रिपल तलाक वाले केस में दो डॉक्ट्रिन्स यूज हुई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. ओके, सो ये चीज यहां पे थी. अब देखते हैं संथारा वाले केस में बेसिकली हुआ क्या था. Let us go through that slide कि संथारा वाले केस में बेसिकली हुआ क्या था. Just a minute. संथारा वाले केस में एक इंडिविजुअल ने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाली थी. इंडिविजुअल फाइल्ड अ PIL इन द सुप्रीम कोर्ट और उसमें यह बोला था कि दिस is illegal and punishable. This practice of santhara is illegal and punishable because it is suicide, and also जो लोग साथ में रहते हैं they should be charged with abatement to suicide. The person who is committing santhara should be charged with suicide, and the person who are supporting him should be charged with abatement to suicide. And they said this is not a fundamental right under Article 25. The practice of santhara is not a fundamental right under Article 25, and it breaches Article 21 of the Constitution. This was filed, these arguments were filed in the PIL by the individual, wherein the Jain community ने क्या बोला था, this is a very ancient and a religious practice. This is a very ancient and religious practice and done for self purification. एक स्लोगन भी उस समय काफी जैन कम्युनिटी कैरी करके घूमती थी कि ये आत्महत्या नहीं आत्म कल्याण है, वेरिन आप रियलाइज करते हैं कि आपका लाइफ का पर्पस जो है फुलफिल हो गया. एंड दैट इज व्हाई यू टेक ए वेरी नॉन डिसीजन, यू टेक ए वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफ एंडिंग योर लाइफ, राइट. एंड इज नॉट अबाउट गिविंग अप लाइफ बट टेकिंग डेथ इन देयर स्ट्राइड. सो राजस्थान हाईकोर्ट ने क्या बोला, राजस्थान हाईकोर्ट में ये PIL फाइल हुई थी. तो इन इंडिविजुअल के ये आर्गुमेंट्स थे. जैन कम्युनिटी को जब रेस्पॉन्ड बैक करने के लिए बोला तो दे गेव दिस आर्गुमेंट. राजस्थान गवर्नमेंट ने इमीडिएटली संथारा जो प्रैक्टिस है उसको बैन कर दिया, उस पर रोक लगा दी. एंड अगर रोक नहीं लगती है तो राजस्थान हाई कोर्ट सेड दैट अंडर IPC इंडियन पीनल कोड द पर्सन विल बी चार्ज्ड विद सुसाइड प्लस अबेटमेंट टू सुसाइड. ये लोग गए सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्टे लगाया एंड सेड दिस the practice of santhara is a self-inflicted euthanasia. अब euthanasia क्या है ये आप पढ़िएगा. What is euthanasia is to be read by you. ठीक है, तो ये हमारा हो गया एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स की हम चीजें यहां पे देख रहे थे. ये क्लियर है सबको. और जब एसेंशियल्स और नॉन एसेंशियल्स की बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट ने और भी चीजें कही. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो यहां पे देखिए इन हिंदुइज्म worshipping, just a minute, Supreme Court also said that in Hinduism worshipping of an image or idol is considered as a essential practice. Hinduism में idol की मूर्ति पूजा जो है एक essential practice है. Also said Muslims offering prayers at a public mosque is a essential practice. कौन सी practice
एसेंशियल नहीं है, वहां पे बोला सेक्रीफाइस ऑफ ए काउ इन अ मुस्लिम रिलीजन इज नॉट अ एसेंशियल प्रैक्टिस। गौ हत्या मुस्लिम इस्लाम में एसेंशियल नहीं माना गया है, तो उस पर रोक लग सकती है। A Hindu male marrying a second wife after conversion while first spouse leaving is again not an essential practice. Fine. Now let us go to the next topic, that is the difference between the religious activities within a religion and the secular activities. पहले जो स्लाइड में हमने देखा था, just a minute, पहले जो हमने स्लाइड में देखा था, यहां पे एक था the religious versus secular activities, right? The religious versus secular activities. तो religious activities कौन सी हैं, secular activities कौन सी हैं किसी भी religion में? So we have to see religious versus secular activity. किसी भी रिलीजन में किस एक्टिविटी को, किन एक्टिविटीज को हम रिलीजियस एक्टिविटी मानेंगे, वो की मतलब वो धर्म से जुड़ी हुई एक्टिविटी है। और उसी रिलीजन में जो उसके लोग, जो लोग उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो जो प्रैक्टिसेस उनकी लाइफ में हैं, उनके डे टू डे रूटीन में है, उनमें से कौन सी प्रैक्टिस जो है वो सेकुलर प्रैक्टिस है, मींस दैट इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन। What are the practices which are basically secular in nature and not religious in nature? कई बार क्या होता है, जो secular practices हैं उनको हम मर्ज कर देते हैं रिलीजन के साथ, एंड पीपल यूजुअली थिंक दैट एवरीथिंग इज रिलीजियस। नो, आप पूजा करते हैं, पूजा का जो आपका रिचुअल जो है, आपका पूजा का मोड ऑफ वर्शिप, आपका रिचुअल्स, आपकी जो सेरेमनीज जो हैं उस रिलीजन में, दिट ऑल आर रिलीजियस एक्टिविटीज। आप किस तरह से, आपका मान लीजिए घर पे बच्चा हुआ तो बच्चे का आप मुंडन करवाते हैं, दैट इज सेरेमनी, दैट इज एसेंशियल प्रैक्टिस, राइट? गणपति है, गणपति को आप घर लेके आते हैं, गणपति को विसर्जन करने जाते हैं, दैट इज ए रिचुअल, दैट इज एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ ए रिलीजन। रोजा रखते हैं, रोजे में आप शाम को इफ्तारी करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एसेंशियल ऑफ ए रिलीजन। तो ये हो गए आपके religious activities. All these activities will be classified as religious activities. All these activities will be classified as religious activities. Now what are secular activities? Secular activities कौन सी है? वो सारी activities, वो कोई भी religion में कोई किसी चीज से related economic activity कोई है, कोई financial activity है, कोई activity which is related to politics, political activity है, that all these activities will not be counted as religious activities. For example, कोई educational center है, educational institute है, which comes under or which is governed by a particular religion, ठीक है? religious education impart करने के लिए कोई educational institute है, उस institute का जो head होगा, उसका जो सिलेक्शन होगा, दैट शुड नॉट बी रिलीजियस, दैट इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, सो दैट फॉल्स अंडर सेकुलर एक्टिविटी, राइट? कास्टिज्म जो है हिंदूज में, इंडिया में, दैट वाज अ सोशल एक्टिविटी, दैट वाज नॉट अ रिलीजियस एक्टिविटी। वेदों में जो रिलीजन कास्टिज्म या वर्ण सिस्टम की बात की गई है, वो आज के डेट में जो वर्ण सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, जाति सिस्टम है, उससे काफी डिफरेंट था। तो उसको हम सेकुलर एक्टिविटी है, दैट इज नॉट रिलीजियस एक्टिविटी, बट लोगों ने उसको फॉलो किया, लोगों ने उसको माना। इवन जो दलित थे, जिनको मैक्सिमम ब्रंट जो बियर करना पड़ता था, दे एक्सेप्टेड इट बिकॉज दे वर सेड दैट इट इज पार्ट ऑफ रिलीजन, बट इट वाज नॉट पार्ट ऑफ रिलीजन। तभी गवर्नमेंट ने उस पर रोक भी लगाई, कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन पे, अनटचेबिलिटी पे, राइट? तो दीज आर ऑल सेकुलर एक्टिविटीज। विच हंटिंग, आपने इनके बारे में सुना होगा। डायन, कई बार गांव में किसी औरत को डायन बोल दिया जाता है और उसके साथ बहुत अत्याचार होता है। तो विच हंटिंग अगेन, या किसी को विचेस बोलना, जादू, सुपर नेचुरल एक्टिविटीज पे भरोसा करना, सुपर नेचुरल एक्टिविटीज करना, दीज आर नॉट एसेंशियल टू एनी रिलीजन, दीज आर अगेन सेकुलर एक्टिविटीज। So this is the major difference between religious activities and the
सेक्युलर एक्टिविटीज। यहां तक क्लियर है सबको? रिलीजियस एक्टिविटीज, सेक्युलर एक्टिविटीज क्लियर हो गई? नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू सी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड द एसेंशियल of a religion. Uniform civil code and the essentials of a religion. Next is uniform civil code and essentials of a religion. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये मेंशन है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि व्हाट अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड विच इज मेंशन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और बीजेपी का तो हर इलेक्शन में मुद्दा रहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा, व्हाट हैपेंड टू योर प्रैक्टिस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हेन आर यू ब्रिंगिंग अप दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो हो हल्ला मर जाता है हर जगह। हर पॉलिटिकल पार्टी किसी भी रिलीजियस माइनॉरिटी को डराने लगती है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लग गया तो आपके राइट जो हैं वो वायलेट होंगे, आपके राइट, फंडामेंटल राइट जो हैं, आपके जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं, दैट विल बी गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। भड़काते हैं लोगों को, मगर सच्चाई हम देखते हैं अभी सच्चाई क्या है। When we talk about uniform civil code, we are basically talking about a law which will govern the civil activities of all the citizens of the country at par. Fine. जो सिविल एक्टिविटीज हैं इंडिविजुअल्स की, कंट्री में सिटीजन की, सबको बराबर होगा। आज की डेट में आप देखते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दे आर पर्सनल लॉ बोर्ड, वो गवर्न करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन द क्रिमिनल एक्टिविटीज कैन बी गवर्न्ड बाय द सेम लॉ, व्हाई नॉट द सिविल एक्टिविटीज? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात यहां पे होती है। तो अब बात आती है यूनिफॉर्म, कई बार बोलते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो आपकी जो शादी करने का जो कस्टम है, रिचुअल है, पद्धति है, वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि आप कितनी शादियां कर सकते हैं और दूसरी शादी आप किस कंडीशन में कर सकते हैं। गवर्नमेंट आपके कस्टम्स को डिसाइड नहीं करेगी। अगर 7 फेरे लेने हैं किसी रिलीजन में शादी को पूरी होने के लिए, देन गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन दैट। अगर किसी भी रिलीजन में शादी को पूरा होने के लिए अगर कुछ कबूल है करना है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। इट विल नेवर इंटरफेयर इन द कस्टम, द रिचुअल्स एंड द ceremonies of the marriage. It will talk about the different aspects of marriage. पहली बात तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर बेसिकली 6 चीज कवर होंगी, ये आप समझ लीजिए। एंड ऑल दोज 6 थिंग्स आर नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी रिलीजन। पहली चीज जो रिलीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड में कवर होगी वो है मैरिजेस। ठीक है, मैरिजेस में कस्टम्स, उसके रिचुअल्स, उसकी सेरेमनीज कवर नहीं होंगी। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज, कि आप कितनी शादियां कर सकते हो, शादी आपकी वैलिड कैसे होगी, क्या नहीं, वो सारी चीजें कवर होंगी। सेकंड चीज जो है वो है डिवोर्स। किस कंडीशन में डिवोर्स हो सकता है और डिवोर्स का प्रोसेस क्या है, व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिवोर्स, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज मेंटेनेंस। अगर डिवोर्स होता है तो मेंटेनेंस का प्रोसेस क्या होगा, किस कंडीशन में मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, किस कंडीशन में मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कि मेरे फादर से जो मुझे प्रॉपर्टी मिल रही है उसका प्रोसेस क्या होगा। क्या सारे सिबलिंग्स में इनहेरिटेंस जो है वो बराबर होगा या फिर किसी को प्रेफरेंस दी जाएगी। दैट टू विल बी कवर्ड अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट। नेक्स्ट इज एडॉप्शन। आप किसको अडॉप्ट कर सकते हैं, किसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, और जो एडॉप्टेड चाइल्ड है उसके राइट्स क्या होंगे, क्या नहीं होंगे। दैट विल अगेन फॉल अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट वन इज सक्सेशन राइट्स। सक्सेशन राइट, अगेन दिस विल फॉल अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो जो लोग इतना हल्ला मचाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो किसी के जो फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है वो वायलेट होंगे, आपके जो रिलीजन से रिलेटेड एसेंशियल जो चीजें हैं वो वायलेट होंगी, दैट इज कंप्लीटली फार्सिकल। दैट इज कंप्लीटली फार्सिकल। ऐसा कुछ नहीं होगा। यही सारी चीजें कवर होंगी
and these all are secular activities. ये ध्यान रखिए, these all are secular activities, these are not religious activities. Got it? Clear है यहां तक? Be fast. Now let us see the अब टॉपिक कौन सा बचा है. हमने what are essentials and non-essentials of religion we have already seen. Who decides on essentials of religion? Supreme Court, we have seen. Religious versus secular activities, of course we have seen. Uniform civil code and essential activities we have seen. Next topic that we have to see is right to freedom of religion. Right to freedom of religion हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28 जो है हमें गारंटी करते हैं. आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, 28 गारंटी इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है. अब 25, 26, 27, 28 में क्या क्या है दैट वी विल सी लेटर ऑन. सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 25 क्या बोलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट डज आर्टिकल 25 टॉक्स अबाउट. यहां एक चीज आपको देखनी है, जो राइट टू रिलीजन है, फंडामेंटल राइट टू रिलीजन जो है हमारा है, फंडामेंटल right to religion. This fundamental right is available to every person in India. Is available to every person who is present in India. एक चीज आपको यहां पर डिफरेंशिएट करनी है, पर्सन की बात हो रही है, सिटीजन की बात नहीं हो रही है. तो राइट टू फंडामेंटल राइट टू रिलीजन जो है दैट इज नॉट ओनली available to the citizens of the country, it is available to all the persons who are residing in the country, whether the person is a foreigner, whether the person is a NRI, whether the person is a PIO और OCI, दोनों को तो अब मर्ज कर दिया गया. कोई भी इंडिविजुअल हो, उनको ये राइट जो है वो अवेलेबल है. नो वन कैन स्नैच दैट राइट. तो सबसे पहले ये यूपीएससी यहीं पे आपको फंसा देगी एमसीक्यू में कि इट इज अवेलेबल टू ओनली फॉर द सिटीजंस ऑफ ए कंट्री. नो, इट इज अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन द कंट्री. It is available for every person who is residing in the country. Fine. Exactly, Rashmi. Exactly. ठीक है, ये पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है. अब आते हैं कि क्या क्या है इसमें. सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि फंडामेंटल राइट टू रिलीजन में रेस्ट्रिक्शंस भी लागू हैं. फंडामेंटल राइट टू रिलीजन आपका जो है उसको गवर्नमेंट जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस उसमें लगा सकती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. इफ योर प्रैक्टिस, इफ द रिलीजियस एक्टिविटी अमाउंट्स टू डिस्टर्बिंग द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजंस, देन योर फंडामेंटल राइट टू रिलीजन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, 3 क्लोजेस दिए हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. इन 3 कंडीशंस में, इन 3 रीजंस पे आपके फंडामेंटल राइट टू रिलीजन पे रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग सकती हैं. ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस हमने देख ली. कोई बोलते देयर इज, अगर इफ देयर इज अ ऑप्शन दैट द फंडामेंटल राइट टू रिलीजन इज एब्सोल्यूट राइट एंड देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, माइंड इट, देयर आर रेस्ट्रिक्शंस टू इट. Right. पहला, are equally entitled to freedom of conscience. All the person living within the territorial boundary of India and abroad, if they are Indian citizen, are entitled to fundamental freedom of conscience. They have the right to freely profess, practice and propagate the religion. They have the right to freely profess भी कर सकते हैं, practice भी कर सकते हैं, propagate भी कर सकते हैं. Then it further provided this article shall not affect any existing law and shall prevent the state from making any law relating to regulation or restriction of any economic, financial, political, secular activity. देखिए यहाँ पे secular activity की बात की है, बोला है कि
ऊपर जो भी चीजें कही गई हैं, दे शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग लॉज related to economic, financial, political, or secular activity associated with the practice, also providing social welfare and reform, and also opening of Hindu religious institution of public character for all the classes and sections of the Hindus. ठीक है, देखिए कास्ट सिस्टम जो था वो रिलीजियस नहीं था, तभी तो हर टेम्पल में पहले लगे रहते थे कि कौन अलाउड है कौन नहीं है। अब कास्ट सिस्टम रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, तभी ये गवर्नमेंट ने भी बोला कि भाई कोई भी टेंपल में आप किसी भी क्लास ऑफ हिंदूज के एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। सो दिस वाज मेंशन बाय द, these are absolute rights. Tanuj says these are absolute rights. No Tanuj, it is not a absolute right. Absolute right नहीं है, and you have to understand that. ठीक है, अब यहां पे आता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। मतलब क्या हुआ? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन एंड फ्रीडम टू नॉट टू फॉलो रिलीजन। आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको थीस्ट और एथीस्ट बनने की दोनों की परमिशन प्रोवाइड करता है। कंसाइंस मतलब कि आपका कंसाइंस क्या बोलता है, आपकी सोच क्या है, और ये अलाउ करता है कि आपको कौन सा रिलीजन फॉलो करना है, और अगर आपको रिलीजन नहीं भी फॉलो करना है, देन ऑल्सो दैट फॉल्स अंडर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दैट इफ यू डोंट वांट टू फॉलो एनी रिलीजन, तो राइट टू फॉलो रिलीजन एंड राइट टू नॉट फॉलो रिलीजन, राइट नॉट टू फॉलो द रिलीजन। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में दोनों चीजें आती हैं। देन देयर आर 3 वर्ड्स, प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। प्रोफेस मतलब कि आप पब्लिक में अपना रिलीजन जो है आप बता सकते हैं। यू हैव द राइट टू प्रोफेस योर रिलीजन इन पब्लिक, यू हैव द राइट टू प्रोफेस योर क्रीड इन पब्लिक, राइट। आप जाके अपना सबको बताएंगे रिलीजन क्या है आपका, नो वन यू आपको ऐसे छुपने की जरूरत नहीं कि आपका रिलीजन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस। यू कैन प्रैक्टिस द रिचुअल्स, द कस्टम्स, द सेरेमनीज ऑफ द रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर रिलीजन इन पब्लिक और प्राइवेट बोथ। आपके रिलीजन से रिलेटेड जो वर्शिप की आपकी पद्धति जो है, आपके जो रिचुअल्स हैं उससे रिलेटेड, जो सेरेमनीज हैं उससे रिलेटेड, यू कैन प्रैक्टिस देम इन प्राइवेट और इन पब्लिक बोथ। दिस इज द राइट। देन देयर इज अ राइट टू प्रोपगेट रिलीजन। राइट टू प्रोपगेट रिलीजन मतलब आप अपने रिलीजन के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं। यू कैन टेल पीपल अबाउट योर रिलीजन, यू कैन communicate about your belief system to another person. That is known as propagation. So that is also allowed, but that does not cover right to conversion. आप अपने रिलीजन के बारे में बता सकते हैं, बट लालच देके, कोई प्रलोभन देके आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट, दैट डज नॉट अमाउंट टू योर फंडामेंटल राइट। ठीक है, सिमिलरली there are another provisions in article 26, 27, 28 restrictions हमने देख लिए हैं, right? ये सारी चीजें प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट we have already seen. These are article 25, article 26, article 27 and 28. So article 26 basically बात करता है religious affairs को मैनेज करने के लिए, और बात करता है religious denominations के लिए। Then article 27 बात करता है पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड टैक्सेस वगैरह जो है वो कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको लेके इट इज एबल टू पर्सन अगेंस्ट रिलीजियस डोमिनेशन, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलीजियस जो डिनोमिनेशंस हैं वो खोल सकते हैं या नहीं, उससे रिलेटेड है आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28। फाइन, तो ये हमारा जो एसेंशियल्स एंड नॉन एसेंशियल्स वाला टॉपिक था दैट वी हैव कवर्ड नाउ। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डे। द नेक्स्ट टॉपिक इज दिस वन, appointment of High Court judges. Recently, Supreme Court has appointed 20 High Court judges to different states of Karnataka, Haryana, Gujarat, Assam, ठीक है, Punjab and Bombay. So in different states में Supreme Court ने 20 judges की appointment करी है, and that is why it is in news. So we will be reading out and we will be seeing all the related news or information related to the appointment of judges. Judges के appointment से related जो भी चीजें हमें
इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़नी है, वी विल रीड एवरी वन ऑफ देम. पहला, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. पहला जो हमको देखना है, दिस इज all the constitutional provisions related to high courts and the high court judges in the constitution of India. ठीक है, कौन कौन से प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेटेड टू हाई कोर्ट्स एंड द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, दैट वी हैव टू सी. नेक्स्ट वी हैव टू सी क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग ए हाई कोर्ट जज. हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए वो भी देखेंगे. नेक्स्ट विल सी अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस. Prevention of Money Laundering Act. Okay, Pratush, it will be covered, don't worry. We'll cover it up. Fine. Appointment of High Court judges. Judges के High Court के judges का appointment का process क्या है, procedure क्या है, that also we will be seeing. Next, the collegium system. Next we will be seeing the collegium system. ये collegium system है क्या बवाल, ठीक है, ये देखना जरूरी है क्योंकि इस पे काफी कंट्रोवर्सीज रही है, काफी क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं इस पे, और सरकार ने कोशिश भी की है कि कॉलेजियम सिस्टम को बदला जाए, बट जजेस ने फिर से उस पर हथौड़ा मार दिया अपना, ये वाला हथौड़ा, यही वाला हथौड़ा मारा जजेस ने कॉलेजियम सिस्टम को जब बदलने की बात हुई. देन विल सी इवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम. कॉलेजियम सिस्टम एग्जिस्टेंस में कैसे आया, बिकॉज कॉलेजियम सिस्टम की बात कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी नहीं करी थी, ना ही कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड कोई लॉ जो है वो पार्लियामेंट ने बनाया. तो ये कॉलेजियम सिस्टम जो है प्रैक्टिस में आया कैसे, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी. Next, and finally we'll see what are the issues related to the collegium system. What are the issues related to the collegium system? Fine. So now let us start with the constitutional provisions for High Court. Let us start with the constitutional provisions for High Court. All right. Constitutional provisions related to हाई कोर्ट्स. हाई कोर्ट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट इज आर्टिकल 214. फर्स्ट इज आर्टिकल 214. Then we have article 217. Then we have article 224 clause A, I suppose. Yes, it is article 224 clause A. And then we have article 237. And then we have article 231. Sorry. We have article 231. So these are the 4 articles related to the High Court. Fine. Article 214 says that there should be a high court in every state. This says that there should be a high court in every state. Right? Again, Article 231 here, it says that पार्लियामेंट को पावर है कि वो किसी भी एक हाई कोर्ट को एक से ज्यादा स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करे. आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट. इट टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट. Right. Article 224A talks about appointment of the ad hoc judges. Ad hoc judges मतलब temporary judges. तो ad hoc judges का appointment जो है वो किसी भी हाई कोर्ट में कैसे होगा, वो है आर्टिकल 224A में. यहां तक क्लियर है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्वालिफिकेशंस फॉर बिकमिंग अ हाई कोर्ट जज. Qualifications for
बिकमिंग अ हाई कोर्ट जज। पहली क्वालिफिकेशंस क्या है? पहली क्वालिफिकेशन है द पर्सन शुड बी अ इंडियन सिटीजन। पर्सन शुड बी अ इंडियन सिटीजन। ठीक है। Next is the person who can be appointed as a high court judge should have worked or should have a 10 years of experience in judicial capacity. 10 years experience in judicial capacity. तीसरा, that person who can be appointed as a judge of high court should have experience or should have worked as a advocate in any of the high court of India, या फिर 2 या 3 हाई कोर्ट्स में उनका 10 साल का टोटल एक्सपीरियंस जो है एज ए एडवोकेट जो है वो होना चाहिए। 10 years of experience as advocate in the high court। 10 years of experience in the high court or more such court। फाइन, यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? Now we have to see appointment of the high court judges। हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट देखना है कैसे होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस बेसिकली आर्टिकल 217 जो है वो हमारा क्या बोलता है? द हाई कोर्ट जज शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट in consultation with the Chief Justice of India and the Governor of that state। तो पावर अपॉइंटमेंट की किसको दी गई है? अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद। ये जो यहां पे जो वर्ड है कंसल्टेशन ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये जो कंसल्टेशन वर्ड जो यहां पे बोला गया है इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, एंड यू शुड बी टेकिंग नोट ऑफ इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जो भी बवाल मचा कॉलेजियम सिस्टम आया वो इस कंसल्टेशन वर्ड के वजह से आया। इन कंसल्टेशन विद सीजीआई प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, प्लस गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। सीजीआई प्लस, क्या क्वेश्चन है? यहां तक ठीक है सबको? ठीक है सबको यहां तक? अब देखिए, अब यहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जो है बढ़ेगी आपके लिए। ये तो हो गया ओवरऑल जजेस के अपॉइंटमेंट की बात। अगर किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस की बात हो रही है अपॉइंटमेंट की, and the appointment is of any judge but the Chief Justice of the High Court, then the Chief Justice of the High Court should also be consulted। अगर उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट नहीं है और बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट है, तो उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी कंसल्टेशन होना चाहिए। Then the Chief Justice of a high court, that particular high court, should also be consulted। should also be consulted। ये एक प्रोसेस है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट shall also be consulted। फाइन। ये जो कॉलेजियम कंसल्टेशन की जो बात हुई है यहां पे, when we talk about the process of consultation with the Chief Justice plus Governor, we are basically talking about the recommendation of the CJI and the Collegium of Supreme Court। जब यहाँ कंसल्टेशन की बात हो रही है तो we are basically talking about, we are here basically talking about the recommendation by CJI and the Collegium।
ठीक है। कॉलेजियम में कितने लोग होते हैं? कॉलेजियम में लोग होते हैं CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, 4 सीनियर मोस्ट जजेस। अब ये कॉलेजियम के पीछे की कहानी जो है वी विल सी लेटर ऑन। कॉलेजियम की जो पीछे की कहानी है वो हम देखेंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कंसल्टेशन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकमेंडेशन बाय द CGI एंड कॉलेजियम। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की बात हो रही है, CGI और कॉलेजियम होता है, तो कॉलेजियम में CGI भी इंक्लूडेड है बेसिकली। इसको आप चाहे तो यहां से मिटा दीजिए, इसको चाहे तो आप यहां से मिटा दीजिए। इसमें कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड है। तो कॉलेजियम में कितने लोग हैं? CGI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ये पूरा प्रोसेस हमको समझाते हैं कि कल किसी भी हाई कोर्ट का जो जज का अपॉइंटमेंट होता है उसका प्रोसेस क्या होता है। लेट अस अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस। किसी भी हाई कोर्ट, लाइक टेक एग्जांपल ऑफ हियर, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। दिस इज कर्नाटका हाई कोर्ट। तो द चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के, वो रिकमेंड करेंगे चीफ मिनिस्टर को। वो रिकमेंड करेंगे किसको? चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। This chief minister of a state will forward this request to the governor. Governor will forward this request to the law ministry. Governor will forward this request to the law ministry. Then this will go to the collegium and after the collegium gives recommendation, उसके बाद गवर्नमेंट जो क्या करती है वो फिर फाइनल करती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव का रोल है बहुत माइनर है। एग्जीक्यूटिव का रोल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव जो है मतलब गवर्नमेंट जो है सिर्फ 2 रोल प्ले करती है हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में। पहले तो वो उसका पूरा वो करवाते हैं, गवर्नमेंट जो है वो पूरा उनका एक इन्वेस्टिगेशन कराती है उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज का। गवर्नमेंट रिक्वेस्ट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पर्टिकुलर जज हु हैज बीन रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम। तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट करवाती है, बैकग्राउंड चेक करवाती है, उसकी रिपोर्ट जो है फिर जो एजेंसीज हैं वो गवर्नमेंट को सबमिट करती हैं। सेकेंडली द एग्जीक्यूटिव एट मोस्ट कैन क्या कर सकती है? एग्जीक्यूटिव कॉलेजियम को एक बार फिर से रिकंसीडर के लिए बोल सकती है कि प्लीज रिकंसीडर द चॉइस दैट यू हैव प्रोवाइडेड। मगर अगर कॉलेजियम ने दोबारा फिर उसी इंडिविजुअल का नाम भेजा जज के लिए, देन द गवर्नमेंट इज बाउंड टू अप्रूव द नेम ऑफ द हाई कोर्ट जज विच हैज बीन रिकमेंडेड बाय द कॉलेजियम। अगर कॉलेजियम ने दोबारा उसी इंडिविजुअल का नाम फिर से लिया, देन द गवर्नमेंट इज बाउंड टू डू दिस। ठीक है, तो ये हुआ बेसिकली प्रोसेस पूरा। अब यहां पे ये बात आती है कि कॉलेजियम सिस्टम जो है ये है क्या? कॉलेजियम सिस्टम जो है ग्रुप है, बेसिकली एक कोलाज बनाया हुआ है विच कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। और ये जो कॉलेजियम है दैट विल रिकमेंड the appointment of the high court judges and the judges of the supreme court, and also this will recommend the transfer of the judges. जजेस का जो ट्रांसफर है वो भी ये कॉलेजियम ही रिकमेंड करता है। और अपॉइंटमेंट जो है कलकत्ता हाई कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट्स का, अगेन दैट इज रिकमेंडेड बाय द चीफ दिस कॉलेजियम ओनली। फाइन। कॉलेजियम में कौन कौन है? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 4 सीनियर मोस्ट जजेस कॉलेजियम का हिस्सा होते हैं। राइट अब ये हमको देखना है कि इवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, ये कॉलेजियम सिस्टम जो है एग्जिस्टेंस में कैसे आया? कॉलेजियम सिस्टम जो है ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया? इवोल्यूशन ऑफ द कॉलेजियम सिस्टम, evolution of the collegium system. Evolution of the collegium system. बेसिकली 3 केसेस हैं। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस बोला जाता है इनको। देयर आर बेसिकली 3 केसेस। फर्स्ट वन इज फर्स्ट जजेस केस, first judge's case. Second is second judge's case, and third judge's case.
and third judge's case. This is also known as Gupta case. Gupta case. This is advocate on records versus Government of India case. And then the next one, the third one is third judge's case only. ठीक है, तो पहला जो केस हुआ था वो 1981 में हुआ था. दिस took place in the year 1981. This took place in the year 1981. This took place in the year 93, and this took place in the year 1998. ये 1998 में, 1993 में, 1981 में ये केस हुआ. तो इन केसेस के बाद बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट होना स्टार्ट हुआ हमारी कंट्री में. जस्ट मिनट, कुछ क्वेश्चन है क्या? ऑलराइट, कवर हो जाएगा प्रत्युष, नो इश्यूज. तो बेसिकली जो हमारा पहला केस था, फर्स्ट जजेस केस हो जाए, गुप्ता केस जो था, ये एग्जीक्यूटिव के फेवर में था, ये गवर्नमेंट के फेवर में था. उन्होंने बोला कि जो जजेस का रिकमेंडेशन जो है, चीफ जस्टिस का रिकमेंडेशन जो है, इट कैन बी रिजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर कॉजेंट रीजंस, for certain verified reasons, for certain logical reasons, it can be rejected by the government. So herein, in the first judge's case, Gupta case जो है 1981 में जो हुआ था, in this case, Supreme Court said that the executive should have the primacy. Executive should have the primacy while appointing the judges of High Court and Supreme Court. ठीक है, पहला जो केस था उसमें एग्जीक्यूटिव को पावर मिली अपॉइंट करने की. In the second case, in the advocate on record versus Union of India case, जो कि 1993 में हुआ, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने नई थ्योरी निकाल दी. सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो हमने आर्टिकल 217 में पढ़ा था, दैट द प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट द जजेस इन कंसल्टेशन विद द सीजीआई एंड गवर्नर. वहां पे कंसल्टेशन मतलब सिर्फ बात करना नहीं होता है, यही बवाल है यहां पे. तो बात, कंसल्टेशन मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, कंसल्टेशन मतलब कंकरेंस भी है. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस पर्टिकुलर केस. दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस, क्या हो गया? दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस पर्टिकुलर केस, दैट हियर कंसल्टेशन means concurrence. Consultation does not merely means discussing with the Chief Justice of India, it means concurring with the recommendation of the Chief Justice of India. तो प्रेसिडेंट उन्हीं को रिकमेंड कर सकते हैं जिनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं. और यहां पे ही इसी केस में सुप्रीम कोर्ट सेड that when we talk about the opinion of the CJI, we are talking about the institutional opinion. We are not talking about the individual opinion. तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल ओपिनियन वर्सेस इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन की बात की. यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंडिविजुअल ओपिनियन वर्सेस इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन की बात की और बोला कि जब हम कंकरेंस की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस द सीनियर मोस्ट जजेस. तो यहां से सेकेंड जजेस केस से जब इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन की बात कही तब बात हुई कॉलेजियम की, मतलब की Chief Justice of India plus the senior most judges of the Supreme Court. Right? And it was during the 1998, the third judges case, जहां पे collegium को Supreme Court ने expand किया and it was made a 5 members body. यहां पे 3 members body थी, CGI plus 2 senior most judges की बात हुई थी. 1993 advocate on general versus Union of India case, and it was in the third judge's case, that is 1998, wherein Supreme Court expanded the collegium and made it a 5-member body which includes CGI plus 4 senior most judges.
फाइन, 5 मेंबर बॉडी जो है कोलेजियम को बना दिया गया, विच इंक्लूड CJI प्लस 4, CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कमेंट पढ़ता हूं, दिमाग स्किप कर जाता है। तो यहां तक क्लियर है सबको? एनी डाउट? Any doubt? You can put your doubts, you can put your issues in the comment sections of the YouTube so that I can resolve them instantly. Otherwise, आप डालिए, अगर कोई भी इसमें issue होगा, the institution will respond you back in the comment section itself. Contact number होगा, contact number पे भी आप बात कर सकते हैं, but do comment, do keep commenting and let us grow. सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सारी चीजें करिए टू मेक द वॉइस ऑफ चेंज IAS louder and clear to all the aspirants preparing for the exam. Alright, तो अब हम देखते हैं कि एक और कॉलेजियम सिस्टम जो है उससे रिलेटेड इश्यूज क्या क्या हैं. व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू द कॉलेजियम सिस्टम? व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड टू द collegium system? Issues related to the collegium system. सबसे पहला इशू है ट्रांसपेरेंसी का, और जुडिशरी पे इस चीज पे कई बार क्वेश्चन मार्क्स भी उठे हैं कि आप गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स पे हमेशा बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लाओ, ट्रांसपेरेंसी लाओ, ब्यूरोक्रेट्स को बोलते हैं अपनी वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी लाओ, मगर जहां तक ये जजेस के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? क्यों? व्हाई द जजेस और द सुप्रीम कोर्ट हैज नेवर लेट डाउन द क्राइटेरिया which will guide or which will actually set precedence about the appointment of judges. आपने क्राइटेरिया मेंशन ही नहीं किया कि ये चीजें होंगी तब आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है. द बेसिक क्राइटेरिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है दैट इज देयर, बट यू हैव नॉट मेंशन कि आप जिनको चूज करके ला रहे हो, अपॉइंट करके आपने जिसका नाम रिकमेंडेशन किया है, व्हाट इज द बेसिस, ऑन व्हाट बेसिस यू हैव रिकमेंडेड द नेम ऑफ दैट इंडिविजुअल. So there is huge lack of transparency. There is huge lack of transparency. Secondary, it is a very cumbersome process. Very cumbersome process, which leads to delay in the appointment of the judges. Which leads to delay in the appointment of the judges. ठीक है, बहुत ही कई सीएम के पास जाएगा, फिर लॉ मिनिस्टर के पास, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर जाके नाम जाएगा. तो इट इज वेरी कम्बरसम प्रोसेस. इट शुड बी मेड मोर स्मूथ बाय डिवाइसिंग ए प्रॉपर मैनर, डिवाइसिंग ए प्रॉपर क्राइटेरिया. जो चीजें फुलफिल होनी चाहिए, टिक 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 टिक, हाँ ये चीजें फुलफिल है, ये फुलफिल है, ये फुलफिल है, ये फुलफिल है, ओके फाइन, गो, यू आर अपॉइंटेड एज अ हाई कोर्ट जज. इन्वेस्टिगेशन होगी, फाइन, बट वो प्रोसेस ही नहीं पता, सो इट बिकम्स ए वेरी कम्बरसम प्रोसेस. थर्ड जो है, that is improper representation of the individuals in the judiciary. Improper representation. Improper representation of different sections of the society in judiciary. So this has been there has been a blame, there has been charges on the government or on the judiciary that only a particular section of people belonging to only certain families have been selected as judges to the high courts and the Supreme Court, and there is no equal and wide representations of different sections of the society in the judiciary. Fine. Then there is vacancy in the high courts.
वैकेंसी इन हाई कोर्ट्स। ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से काफी वैकेंसीज भी रह रही हैं, गवर्नमेंट जल्दी अप्रूवल नहीं दे रही है, इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कई बार रेडी नहीं होती किसी इंडिविजुअल के जज बनने के। कई बार जुडिशरी जो ऐसे इंडिविजुअल को ले आती है कि जिसका जो पास्ट रहा है वो थोड़ा ट्रबलसम रहा है, तो उसकी वजह से जो हाई कोर्ट्स में जो पेंडेंसीज हैं जजेस की, दैट कंटिन्यूज टू बी देयर एज पर द लॉ, एज पर द रूल्स। देयर should be around 1098 जजेस होने चाहिए 25 हाई कोर्ट्स में। 25 हाई कोर्ट में there should be 1098 judges, but at present there are only 645 judges in these 25 high courts. ये जो 25 हाई कोर्ट जो हैं इनमें सिर्फ अभी 645 जजेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो अगेन देयर इज अ ह्यूज पेंडेंसी ऑफ जजेस। अब ये ह्यूज पेंडेंसी ऑफ ह्यूज वैकेंसी इन जजेस, हाई कोर्ट जजेस की वजह से पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं हाई कोर्ट में। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स, पेंडेंसी ऑफ केसेस इन कोर्ट। अब ये जो कॉलेजियम सिस्टम में इतनी सारी दिक्कत है, इसका मतलब ये तो सवाल ये आता है कि क्या सरकार ने कभी सोचा नहीं कि इसको बदला जाए, थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये आपके नेचुरल जस्टिस के खिलाफ भी है, दिस अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस। फाइन, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने ट्राई नहीं किया। गवर्नमेंट ने 2014 में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गवर्नमेंट लेके भी आई थी। एंड और इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाना चाहती थी, NJAC बनाना चाहती थी। जब ये लॉ आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए इसका जुडिशियल रिव्यू हुआ। अब जब जुडिशियल रिव्यू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिस पर्टिकुलर NJAC और द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वायलेट करता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको वायलेट करता है। और ये लॉ जो है NJAC, इट वाज रिमूव्ड, इट वाज मेड नल एंड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए इसको मैं बोल रहा हूं कि मेरे विचार से, मैंने पढ़ा इतना नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, ये अपने आप में नेचुरल जस्टिस के खिलाफ थी। आपके ऊपर है, यू कैन नॉट बी द जज ऑफ योर ओन केस। अपने से रिलेटेड केस पे आप खुद जज हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप आता है। सो दैट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब नेचुरल जस्टिस में 3 चीजें आती हैं, वो चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। नेचुरल जस्टिस में वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं। अब ये NJAC बिल जो आया था, हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम कॉलेजियम, क्या चेंजेस लेके आए थे, वो भी आपको पढ़ना होगा। फाइन, आई बिलीव I have justified the topics that we have discussed today. I'll come up with the new set of questions or topics related to Indian polity and constitution in the coming days for you. Next Tuesday I will be again there. In the meanwhile, आप मुझे comment sections में topic भेजिए Indian polity and constitution से related, कोई भी topic जो news में रहा हो, जिसमें आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हों, जो आपके लिए थोड़ा complicated हो। I will try to make it as simple as I can for you and discuss it in the class. In the meanwhile, share the word that Change IAS is conducting daily current affairs classes for the students preparing for Civil Services Examination 2023. Spread the word and let the world know that we are conducting regular classes, targeted classes for prelims 2023. See you then.